Hello everyone, in this video we are going to discuss conditional probability from the chapter probability. So first of all, conditional probability होती क्या है? So when we have two or more than two events related to a sample space, let's say A and B, तो जहाँ पे अगर एक इवेंट की अकरेंस अफेक्ट डालती है दूसरे इवेंट की अकरेंस को, तो वहां पे हम बात कर रहे होते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की. So basically if we have two or more events from the sample space and occurrence of one event affects the occurrence of other, then here we are talking about conditional probability. So basically probability of A when event B has already occurred is given by this. तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? P A by B नहीं है ये, this is probability of event A when B has already occurred. So see, note that the elements of B which favor the event A are the common elements of A and B. तो क्योंकि हमारा जो event B है वो पहले ही occur हो चुका है और हमें probability निकालनी है event A के लिए, given that B has already occurred, it means P A when B has already occurred is nothing else but see probability of B, क्योंकि B इवेंट आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो जो आपका डिनोमिनेटर आएगा उसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जिसके अंदर B इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है और जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे A के लिए. सो दैट विल बी PA इंटरसेक्शन B. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड इज गिवन बाय PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB. Thus we can also write the conditional probability of A given that B has occurred as probability of A given B has already occurred will be given as number of elementary events favorable to A intersection B upon number of elementary events which are favorable to B. So basically probability of A given B has already occurred is equal to number of elements in A intersection B upon number of elements in B. So basically अगर हम इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को ही डिवाइड कर देते हैं NS, I mean number of elements in sample space, so this will become probability of A intersection B and this will become probability of B. So ultimately we can write probability of event A given that B has already occurred will be equal to probability of A intersection B upon probability of B. ओके, सो अगर हम बात करें कुछ प्रॉपर्टीज की, सो लेट्स से आपका एक सैंपल स्पेस S है जिसके अंदर E एंड F आर टू इवेंट्स रिलेटेड टू दिस सैंपल स्पेस. सो PS गिवन F विल बी इक्वल टू PS इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F. S इंटरसेक्शन F, F तो एक इवेंट है ना सैंपल स्पेस का, सैंपल स्पेस S का, तो S इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा? P ऑफ F. सो इट विल बी इक्वल टू P ऑफ F अपॉन P ऑफ F, दैट विल बी इक्वल टू 1. तो यही तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि P ऑफ S गिवन दैट F हैज ऑलरेडी अकर्ड विल बी इक्वल टू P ऑफ F अपॉन F. P ऑफ F गिवन दैट F हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू 1. तो दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 1. एंड सिमिलरली हम प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 को भी सेम तरीके से प्रूफ कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस. सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. 3 fair coins are tossed. Find the probability that the outcomes are all tails if at least one of the coins shows a tail. तो हमें क्या बताना है यहाँ पे कि let's say event A is at least one coin shows a tail. And let's say event B as all coins show tail. और अगर हम यहाँ पे सैंपल स्पेस की बात करें S, so that will be equal to HHH, क्योंकि हमने 3 बार इनको टॉस किया है. So HHH, यहाँ पे H and T are denoting head and tail. So HHH, HHT, HTH, THH, TTT, TTH, THT and HTT. So this is our sample space. तो sample space हमारे पास में आ चुका है. अब अगर हम बात करें probability, हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है कि probability that all the outcomes are tail given that one of the coin shows tail. तो हमें ये पता है कि एक coin आपका कम से कम tail दिखा रहा है, that is our event A. So basically हमें जो फाइंड आउट करना है probability of B given that event A has already occurred. At least one coin is showing tail. Definitely ये आपके पास में इंफॉर्मेशन गिवन है. उस कंडीशन में आपको ये निकालना है कि सारे के सारे coins आपको tail शो कर रहे हैं इस चीज की probability. So it will be equal to P of A intersection B upon P of A.
तो यहां पे अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल पी ऑफ ए की, तो इवेंट ए क्या कहता है, इवेंट ए कहता है एटलीस्ट वन कॉइन शोज ए टेल, कम से कम एक कॉइन जो है वो टेल शो कर रहा है। तो ऐसे कितने केसेस हो जाएंगे, एक केस ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एक इस वाले केस को हटा दो, इसके अलावा हर केस में क्या है, कम से कम एक टेल आपके पास में आ रहा है। सो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 7/8। अब अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, ऑल कॉइन्स शो टेल, क्योंकि इस केस के अंदर ये वाला भी तो आ गया, अगर सारे के सारे कॉइन्स टेल शो कर रहे हैं इट मींस उसमें एटलीस्ट वन कॉइन भी होगा जो टेल शो कर रहा है। तो अब अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, जिसके अंदर सारे के सारे कॉइन आपको टेल शो कर रहे हैं, तो ऐसे कितने केस हो गए, 1 out of 8। सो प्रोबेबिलिटी विल बी probability of P of A intersection B, it will be 1/8. So ultimately, finally, we will be getting probability as 1/7. So 1/7 will be the final answer for this particular question. So 1/7 is the right answer. Let's move to the next question. So next question goes like, suppose there are 3 bags such that bag A has 10 bulbs out of which 4 are defective. Bag B has 6 bulbs out of which 1 is defective, and third one is bag C has 8 bulbs out of which 3 are defective. A bag is chosen at random and a bulb is randomly chosen from the chosen bag. If the bulb is non-defective, this is our given condition. What is the given condition? If the bulb is non-defective, this is given to us कि जो bulb है आपका वो non-defective है. Find the probability that it came from bag C. Again हम क्या करते हैं, इवेंट A को हम डिस्क्राइब करते हैं, इवेंट A को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि chosen bulb is non-defective. Okay, and event B, हम B को डिस्क्राइब करते हैं कि we have to find probability that it came from bag C. So chosen bulb is from bag C. So basically we have to find probability of B given that A has already occurred. Basically क्योंकि हमें probability निकालनी है कि जो हमारा chosen bulb है वो हमारा bag C से है, और given ये है कि bulb is non-defective. So we have to basically find probability of B given that A has already occurred. So basically this will be equal to probability of B intersection A upon probability of A. ओके तो अब अगर मैं बात करूं बी इंटरसेक्शन ए की, तो बी इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा कि आपका बैग सी के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बल्ब हम चूज कर रहे हैं वो नॉन डिफेक्टिव है। सो बेसिकली बी इंटरसेक्शन ए के अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगा कि सबसे पहले तो हमारा जो बैग है वो सी वाला चूज हो, इट मींस आउट ऑफ ए बी एंड सी हम बैग सी को चूज करते, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 1/3। ओके इनटू, अब अगर हमने सी बैग चूज कर लिया तो उसके अंदर हमारे पास में क्या आना चाहिए, नॉन डिफेक्टिव बल्ब आना चाहिए। तो भाई बैग सी के अंदर 8 बल्ब्स है आउट ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव, मतलब कि 5 बल्ब्स आर देयर जो आपके नॉन डिफेक्टिव है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/8, 1/3 इंटू 5/8 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए क्या कहता है, चूजन बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, जो आपका बल्ब आप चूज कर रहे हो वो नॉन डिफेक्टिव होनी चाहिए। तो इसके अंदर कितने सारे केसेस बनेंगे वो देखो कि सबसे पहले अगर आपका बैग ए चूज होता सो 1/3, अगर बैग ए चूज होता तो इसके अंदर नॉन डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, तो टोटल 10 थे जिसमें से 4 डिफेक्टिव थे, मतलब कि नॉन डिफेक्टिव 6 थे आउट ऑफ 10। सो 1/3 इंटू 6/10 प्लस अगर बैग बी आपका चूज होता अगेन 1/3, अगर बैग बी आपका चूज होता तो उसके अंदर 6 बल्ब थे जिसमें से एक डिफेक्टिव था, नॉन डिफेक्टिव 5 आउट ऑफ 6, और थर्ड वाला तो सेम ही हो जाता हमारे पास में क्या कि आपका बैग सी चूज करते, सो दैट इज 1/3 इंटू और 5/8। सो दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसको सोल्व करने के बाद में हमें जो आंसर मिलने वाला है दैट विल बी 75/247। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, 75/247। ओके तो यहां पे हमने देखा जब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट बी की व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये हमें यहाँ पे केस वर्क भी लेना पड़ा कि जब हमारा बैग ए चूज हो रहा है तब कितने नॉन डिफेक्टिव है, जब हमारा बैग बी चूज हो रहा है तब कितने नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, और जब हमारा बैग सी चूज हो रहा है तब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स के लिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा एडवांस का जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। Let S be the sample space of all 3x3 matrices with entries from the set 0, 1. Let the event E1 and E2 be given by E1 as A belongs to S
where determinant of A is equal to 0 and E2 as A belongs to S, sum of entries of A is 7. If a matrix is chosen at random from S, then the conditional probability of P even given that E2 has already occurred. P even given that E2 has already occurred. So basically we are talking about E1 intersection E2 upon probability of E2. Okay. So E1 intersection E2 क्या आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 0 एंड आपका जो सम ऑफ एंट्रीज है वो भी आपकी 7 आ रही है. ओके. और अगर हम सिर्फ E2 की बात करें तो सम ऑफ एंट्रीज विल बी इक्वल टू 7. जो आपकी सम आ रही है एंट्रीज की वो 7 आ रही है और जितनी भी एंट्रीज है वो 0 एंड 1 को ही बिलोंग कर रही है. तो आपकी 7 कैसे आ सकता है सम जब आपके पास में 0 एंड 1 ही एंट्रीज है. सो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है, मतलब टोटल 9 एंट्रीज है और उन 9 एंट्रीज का सम 7 आ रहा है और सारी की सारी एंट्रीज 0 और 1 हो सकती है. इट मींस हमारे पास में 7 टाइम्स 1 आ रहा होगा और 2 टाइम्स 0 आ रहा होगा. ठीक है. 7 टाइम्स 1 आ रहा होगा, 2 टाइम्स 0 आ रहा होगा, तभी जब हम इन एंट्रीज का सम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 7. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 दैट विल बी इक्वल टू, अगर इनको हमें अरेंज करना हो तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 टाइम्स 1 आ रहा है सो 7 फैक्टोरियल, 2 टाइम्स 0 आ रहा है सो 2 फैक्टोरियल. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E2 दैट विल बी इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल. अब हम बात करते हैं E1 इंटरसेक्शन E2 की. ठीक है. E1 इंटरसेक्शन E2 की. तो डिटर्मिनेंट हमारा 0 होना चाहिए और जो हमारा एंट्रीज का सम है दैट विल बी इक्वल टू 7. तो उसके लिए तो ये कंडीशन है कि आपकी सारी की सारी एंट्रीज ऐसी होनी चाहिए 1 1 1 1 1 1 1 7 टाइम्स 1 बेसिकली एंड 2 टाइम्स 0. सो हमारा जो मैट्रिक्स होगा ना वो कुछ इस टाइप से दिखेगा. तो देखो हमारा 7 टाइम्स 1 हमें यूज में लेना है, 2 टाइम्स 0 हमें यूज में लेना है और जो आपका डिटर्मिनेंट है दैट शुड बी इक्वल टू 0. तो इसके लिए कंडीशन ये होती है कि आपको वो 2 जीरोस जो हैं वो या तो एक रो के अंदर अरेंज करने चाहिए या फिर वो 2 जीरोस आपको एक कॉलम के अंदर अरेंज करने चाहिए, तभी सिर्फ आपको जो डिटर्मिनेंट है वो 0 मिलने वाला है. सो इट विल बी 1 1 एंड 1. तो मतलब कि इन दोनों जीरोस को या तो आप एक कॉलम के अंदर अरेंज करो या फिर आप एक रो के अंदर अरेंज करो. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास में यहाँ पे देखो. सबसे पहले 3C2 क्यों? इन 3 कॉलम, पहले मैं सिर्फ कॉलम्स के लिए बात कर रहा हूं. इन 3 कॉलम्स में से वो 2 कॉलम चूज करना जहां पे सारी की सारी एंट्रीज के 1 1 1 1 आने वाली है. सो 3C2 इंटू, अब जब आपने ऐसा अरेंज कर लिया तो जो कॉलम आपने चूज किया है जिसके अंदर 2 0 और 1 1 है उसके अंदर उन यहां पे आपके पास में 3 प्लेसेस होंगे. इन 3 स्पॉट्स के अंदर कोई भी 2 स्पॉट पे आपको 0 अरेंज करना है तो उसके लिए 3C2 अगेन. ओके. एंड मल्टीप्लाई विद ये आपका है कॉलम वाइज जब आपने सेलेक्ट किया, ये रो के अकॉर्डिंग भी तो आप अरेंज कर सकते थे. सो मल्टीप्लाई बाई 2. तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 3 × 3 9, 9 × 2 18. सो इट विल बी इक्वल टू 18. अगर मैं इसकी बात करूं सो दैट विल बी इक्वल टू 36. अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 गिवन दैट E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, सो दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन n of s अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 upon n of s. Okay, so that will be equal to probability of E1 intersection E2 upon probability of E2. I mean ns से ns वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको वैसे ही फाइंड आउट करने की जरूरत थी नहीं. So it will be equal to 18 upon 36. So that will be equal to 1/2. So probability will be equal to 0.5. So 0.5 is the final answer for this particular question. Let's verify this. Yes, 0.5 is the right answer. Let's move to the next question. तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेई एडवांस का ही. लेट x बी द सेट ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग 1, 2, 2, 2, 4, 4, 0. फॉर एग्जांपल 2, 2, 2, 4, 0 is in x while 0, 2, 2, 4, 4 and 4, 4, 4, 2, 2 are not in x. Suppose that each element of x has an equal chance of being chosen. Let p be the conditional probability that an element chosen at random is multiple of 20. Given that it is a multiple of 5, then we have to find the value of 38p. So basically हमें p की वैल्यू ही यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. गिवन क्या है? गिवन ये है कि जो आपका नंबर है वो आपका 5 का मल्टीपल है. वो आपका नंबर जो है वो 5 का मल्टीपल है. सो मल्टीपल ऑफ 5 के लिए देखो क्या कंडीशन आपके लिए निकल के आती है, पहले उस पर बात कर लेते हैं. मल्टीपल ऑफ 5 देखो कब आएगी कि ये आपके पास में 5 डिजिट नंबर है, ये आपके पास में एक 5 डिजिट नंबर है. सो 1 2 3 4 5. अब 5 का मल्टीपल होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो आपका यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या फिर 5 हो, यही कंडीशन है. बट 5 तो इसके अंदर है ही नहीं,
5 तो हमारे पास में जितने गिवन नंबर्स हैं उनके अंदर है ही नहीं, बट 0 जरूर है, तो 0 को हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, 0 को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अगर आपने 0 को एक बार फिक्स कर दिया तो इन चारों नंबर्स के लिए आप मूव करवा सकते हो नंबर्स को। कैसे कि देखो यहाँ पे जो आपकी डिजिट्स है वो क्या आ सकती थी, यहाँ पे आपके पास में डिजिट्स आ सकती थी 2 2 2 1, ऐसे डिजिट आ सकती थी, या फिर क्या आ सकता था 2 2 2 4। अच्छा, अगर इनको अरेंज करने के लिए हम सोचे तो देखो इस वाले प्लेस को तो आपने फिक्स कर दिया, इन चारों के लिए अब हमें अरेंजमेंट्स देखनी कितनी टाइप के हमारे पास में अरेंजमेंट पॉसिबल है। सो इसको हम अरेंज कर सकते थे 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल से, इसको भी हम अरेंज कर सकते थे 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल से, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स 2 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी आपका 3 टाइम्स 2 रिपीट हो रहा है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन से 2 2 4 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन से 2 2 4 4, so it will be 4 factorial upon 2 factorial into 2 factorial, or we can say 4 4 2 1, 4 4 2 1, again we will be getting 4 factorial upon 2 factorial। तो यहाँ से वैल्यूज क्या आ जाएंगी 4 factorial upon 3 factorial मतलब 4, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 4 4 factorial upon 2 factorial, so it will be equal to 12, okay, this will be equal to 6 and this will be equal to again 12, so 12 plus 6 18, 18 plus 12 30, 34 38, so total 38 cases will be there। मतलब कि जो 5 के मल्टीपल होंगे उसके लिए हमें आंसर मिल गया 38, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 38। अब हम बात करते हैं कि जो मल्टीपल होंगे 20 के भी, जो मल्टीपल होंगे 20 के भी, अगर मैं यहाँ पे दोनों ही केसेस के इंटरसेक्शन की बात करूं तो यार जो भी एलिमेंट्स आपके 20 के मल्टीपल है तो अल्टीमेटली वो 5 के भी तो मल्टीपल हुए, वो हमारे 5 के भी तो मल्टीपल है। तो एक काम करते हैं हम, अब अगर हमें 20 के मल्टीपल निकालने, 20 के मल्टीपल निकालने और नंबर्स क्या है 1 2 2 4 0, ठीक है 1 2 2 4 0। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि हमें अगर 5 का मल्टीपल वो ऑलरेडी गिवन है, मतलब यहाँ पे तो 0 आएगा ही आएगा, हम एक काम करते हैं वो नंबर्स निकाल लेते हैं जो कि 20 के मल्टीपल ना हो, जो कि 20 के मल्टीपल ना हो, उन नंबर्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं और 38 में से माइनस कर देते हैं, और उनको हम 38 में से माइनस कर देते हैं ताकि हमें जो फिर रिमेनिंग नंबर हमारे पास में आएगा दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 20। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ या फिर 4 रखता हूँ दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 20, इसलिए मैं यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ 1 को, इसलिए मैं यहाँ पे 1 को फिक्स कर देता हूँ। अब जो भी नंबर आपके पास में बनेगा वो 20 का मल्टीपल नहीं हो सकता। तो कितने केसेस मेरे पास में पॉसिबल है कि इन तीनों के लिए या तो वो 2 2 2 आ जाए, ठीक है, या तो इसके लिए हमारे पास में हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल दैट विल बी इक्वल टू 1, या फिर वो नंबर आ जाए 2 2 4 टाइप का, तो ये हमारे पास में हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट विल बी इक्वल टू 3, या फिर वो नंबर हो जाए 4 4 2 टाइप का, तो ये हमारे पास में अगेन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट विल बी इक्वल टू 3। सो टोटल ऐसे कितने नंबर हो गए 7। ये वो है जो 20 के मल्टीपल नहीं है, हमें वो चाहिए तो 20 के मल्टीपल हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 38 हमारे पास में जो आए थे वो 5 के मल्टीपल थे, 38 माइनस 7 31, ये हमारे मल्टीपल ऑफ 20 होंगे। ओके, सो अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 31 अपॉन ns कुछ और 38 अपॉन ns, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें स्मॉल p गिवन है, सो इट विल बी इक्वल टू, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, सो 31 इज इक्वल टू 38p। हमें जो वैल्यू पूछी थी दैट विल बी 38p, 38p की वैल्यू पूछी थी, तो 38p इज इक्वल टू व्हाट 31। लेट्स वेरीफाई द आंसर, यस 31 इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A bag contains capital N balls, out of which 3 balls are white, 6 balls are green, and the remaining balls are blue. Assume that the balls are identical, otherwise 3 balls are drawn randomly one after the other without replacement. For I is equal to 1, 2 and 3, let Wi, Gi and Bi denote the events that the ball drawn in the ith draw is a white ball, green ball and blue ball। बेसिकली अगर मैं बात करूं W1 की, इट मींस पहली बार में मेरे पास में व्हाइट बॉल निकली है। अगर मैं बात कर रहा हूं G3 की, इट मींस मेरे पास में थर्ड टाइम में ग्रीन बॉल निकली है respectively। If the probability of P W1 intersection G2 intersection B3 is equal to 2 upon 5n and the conditional probability P of B3 given that W1 intersection G2 has already occurred is equal to 2 by 9, then n equals 2। ये भी हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इवन रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है 2024 का जेईई एडवांस का। ओके, सो सबसे पहले देखो हमारे पास में कितनी बॉल्स थी, n बॉल्स थी, ठीक है, टोटल हमारे पास में n बॉल्स थी। उन n में से 3 बॉल हमारे पास में व्हाइट्स थी, ठीक है, इसके अलावा 6 बॉल्स हमारे पास में ग्रीन थी,
और इसके अलावा रिमेनिंग बॉल्स आर ब्लू। रिमेनिंग कितनी हो गई, टोटल n थी 9 बॉल्स, तो ये निकल गई, सो n माइनस 9 आपके पास में क्या थी, ब्लू बॉल्स थी, ठीक है। अज्यूम दैट द बॉल्स आर आइडेंटिकल, अदरवाइज ओके 3 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली, ठीक है। ये सारी की सारी कंडीशन हम समझ चुके हैं। अब हमें जो गिवन कंडीशन है वो एक तो ये है और एक ये हमें गिवन है, ओके। सो बेसिकली हमें n की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 गिवन दैट W1 इंटरसेक्शन G2। देखो इन सिंबल्स का मतलब ये हुआ कि थर्ड टाइम में ब्लू निकली है, फर्स्ट टाइम में व्हाइट निकली है और सेकंड टाइम में हमारे पास में ग्रीन बॉल निकली है, ओके। सो दिस कैन बी रिटन एज, ये तो हमने अभी अभी फॉर्मूला भी देखा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला, इसका फॉर्मूला कैसे ओपन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन G2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन G2। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2/9। नाउ द पॉइंट इज, हमें ये वाली वैल्यू भी तो गिवन है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन B3 दैट इज इक्वल टू 2/59। ये भी तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमें गिवन है, ओके। सो फ्रॉम हियर वी कैन से 2/9 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में 2/5n, 2/5n अपॉन, अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन G2। मतलब कि पहली बारी में हमारे पास में जो बॉल निकले वो व्हाइट बॉल निकले। अच्छा, तो पहली बार में व्हाइट बॉल निकलने के लिए क्या कंडीशन है कि 3 बॉल आपके पास में व्हाइट थी आउट ऑफ n, सो 3/n, ओके, मल्टीप्लाई विद सेकंड बॉल जो निकले हमारे पास में दैट शुड बी ग्रीन बॉल। ग्रीन बॉल्स कितनी थी हमारे पास में, टोटल 6 बॉल्स थी, ठीक है। सो 6 अपॉन, और यहाँ पे टोटल बॉल कितनी बची, एक तो आपकी व्हाइट निकल ही गई, तो टोटल बॉल हमारे पास में है n-1, 6/n-1। बस अब हमें इसको सोल्व करना है। सो फ्रॉम हियर वी विल बी गेटिंग n इज इक्वल टू 11। सो n की जो वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 11, और हमें पूछा गया था देन n इक्वल्स टू, हाँ, तो फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 11। लेट्स वेरीफाई द आंसर। यस, 11 इज द राइट आंसर। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।